Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will discuss our last session of this chapter, which is purely depends upon electronic configuration of any atom. Because we are studying atomic structure, so it is necessary to study electronic configuration. But after completion of Heisenberg's uncertainty principle, there is one important question. It is Schrödinger wave equation. But I have left this Schrödinger wave equation, but whenever you all will come into school, then we will study Schrödinger wave equation, because it's very typical and very different type of equation. So we will study it in our further school lecture. Okay, but right now we are in our next important part of electronic configuration. It is orbital. The definition is here. आप सबको शायद ये definition तो आती ही है, but again it's a typical way, so we will discuss again this. What is orbit and what is orbital? Electron is moving with exact radius from the nucleus. Exact radius means it is moving in a circle mode. So electron is moving with exact radius in circle mode from the nucleus. This path is known as orbit. This path is known as orbit, and area where electron will finding is known as orbital. This area is known as orbital, and the path is known as orbit. This is the main basic difference between orbit and orbital. So the electron is moving with exact radius from the nucleus. This path is known as orbit, and the area where electron will finding is known as orbital. Okay, then the types of orbital, just see. Orbitals, their types, then filled electrons, and the next one, their shape. Okay, just see how many orbitals are present. Number one, that is 1, 2, 3 and 4 important types of orbitals in our syllabus. There are so many types of orbitals, but in our syllabus we will study either it is G advanced or it is NEET. S, P, D and F. Students, 4 टाइप्स की ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, याद रखिएगा, S, P, D और F, और उसके सब टाइप कौन से, और ये नेम, ये सिंबल क्यों दिए हुए हैं? S मीन्स यहाँ पर होगा स्फीयर, स्फेरिकल मीन्स सर्कल, P मीन्स होगा यहाँ पर प्रिंसिपल, D मीन्स यहाँ पर होगा डिफ्यूज्ड और डीजेनरेट, और F मीन्स यहां पर होगा फंडामेंटल. So there are 4 types of orbitals: S, P, D, F. Sphere, principal, degenerate and fundamental. S, P, D, F. Okay. और ये S का जो टाइप है वो कौन सा टाइप है? S का 1, P का 3 सब टाइप है. सब टाइप मीन्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये ख्याल में रखना है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा कि S ऑर्बिटल के कितने टाइप है. तो S ऑर्बिटल के एक टाइप है. P का सब टाइप कितना है? 3.
D का सब टाइप कितना है 5 और F का सब टाइप कितना है 7। 1 3 5 7। प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं ये प्रूफ करके आप सबको दूंगा कि इसका वन टाइप क्यों है। आई विल प्रूव दिस, बट याद रख लीजिए, अभी याद रखना है 1 3 5 से थ्योरम की जैसा है, पहले आपको प्रिपेयर करना है, बाद में मैं प्रूफ करवाऊंगा। तो S के कितने टाइप है 1, P के 3, D के 5 और F के 7। ओके याद रखिए ये सब टाइप है। ऑर्बिटल्स के एसपीडीएम, उसके बाद G और H भी है, बट वो एक्साइटेड स्टेट में बाद में हम डिस्कस करेंगे। 1 3 5 7 रिमेंबर करिए। S के कितने सब टाइप है 1, P के 3, D के 5 और F के 7। ओके फील्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सब टाइप 1 है, तो 1 into 2 आंसर 2, 3 into 2 6, 5 into 2 10, 7 into 2 14। कितने स्टूडेंट्स को ऐसा क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है कि 2 से ही हमने क्यों मल्टीप्लाई किया। तो ये रूल है, वो पाउलिस रूल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट याद रखिएगा सब टाइप को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फील्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो मालूम पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 6 10 14। शेप, एस का जो शेप है वो सर्कुलर मोड है, स्फीयर शेप है। स्फीयर मतलब जो सर्कल है वही। प्रिंसिपल वो है डंबल शेप, ये है डबल डंबल शेप। और ये डंबल, ये डबल डंबल, और ये रहा ट्रिपल डंबल नहीं, अनसर्टेन। कितने स्टूडेंट ऐसा मन में सोचा होगा ट्रिपल डंबल निकलेगा, वो नहीं है। स्फीयर, डंबल, डबल डंबल और फंडामेंटल का अनसर्टेन। तो इस तरीके के शेप हमें देखने को मिलते हैं और अभी ये सभी शेप ड्रॉ भी करेंगे। ये भी प्रूफ होगा, ये भी प्रूफ होगा, ये भी प्रूफ होगा। बट ये थ्योरम का जैसा है, पहले आपको याद रखना है, बाद में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। सो आप सब समझ सकते हैं, आपको ये टेबल बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं ये टेबल प्रूफ करने के लिए। और टेबल प्रूफ करने के लिए हम एक डेफिनेशन देखेंगे। वो डेफिनेशन है क्वांटम नंबर। What is this quantum number? We will explain this. Just see. What is quantum number? The distance between electron and nucleus. Types of orbitals. Number of electrons and direction of spin. Just see the answers. Some typical questions are here. What is the distance between electron and nucleus? How can we know? How many types of orbitals? How can we know? How many number of electrons filled in different type of orbitals? How can we know? And what is the direction of spin for electron? The answer of these questions is given by quantum number. This is our quantum number, and there are 4 types of quantum number. Number 1 quantum number is principal quantum number, symbol M. It is discovered by Niels Bohr. The second one, angular momentum quantum number. The symbol of angular momentum quantum number is L. It is discovered by Sommerfeld. Third one, magnetic quantum number small m.
which is described by Lang, and the fourth one, spin quantum number small s, given by Gauss-Schmidt and Uhlenbeck. So these are the four important quantum numbers: principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number, and the fourth one is spin quantum number, N, L, M, S. These are the four types of quantum number which are possible. But what is quantum? आप सबने क्वेश्चन मुझे पूछा था मेरी गूगल मीट में, क्वांटम क्या है? तो जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, जितनी एनर्जी इमिट होती है, वो एनर्जी के लिए क्वांटम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो चलिए ये सभी क्वेश्चन के आंसर हम समझते हैं। इसमें तो समझना कुछ नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है। बट अभी हम सब ये क्लेरिफाई करने वाले हैं, और क्लेरिफिकेशन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। स्टूडेंट्स, मैं आपको चैलेंज दे के बता देता हूं ये क्वेश्चन के लिए। कोई भी आप YouTube का वीडियो मेरे अलावा भी देखेंगे ना, तो मैं जिस शॉर्टकट ट्रिक से आपको ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझाने जा रहा हूं ना, वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा रिसर्च मैंने इसमें किया हुआ है। देखिएगा, आप समझेंगे कैसे डायग्राम में प्रिपेयर करता हूं, कैसे आप सबको समझाता हूं। जस्ट देखते रहिए क्या होता है इसमें। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n के बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके, जस्ट सी व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जस्ट सी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है, इट इंडिकेट्स distance between electron and nucleus। समझिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? तो इंडिकेट करता है डिस्टेंस, यानी हम डिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इट इंडिकेट्स डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड nucleus। Okay, second important point, value। Value except 0 always positive integer, except 0 and always positive। स्टूडेंट्स समझिए, अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्टेंस इंडिकेट करता है, तो डिस्टेंस कभी जीरो होता है? डिस्टेंस जीरो हो सकता है? आप सोचिए ना, इसमें नील्स बोहर की भी जरूरत नहीं है। डिस्टेंस जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है। ये यहां से सामने तक का डिस्टेंस -4 मीटर है, नहीं हो सकता। पर यहां पर हम 1 2 3 4 ही लेंगे, पॉइंट में डेसिमल पॉइंट वाला फिगर नहीं ले सकते। एक्सेप्ट 0 always positive। Okay, this is the value of a। Then knowledgeful tackle points are here। Just see third important point, if the value of n is high, then distance is high। सिंपल, अगर ये डिस्टेंस इंडिकेट करता है तो n की वैल्यू अगर हाई रहेगी तो डिस्टेंस हाई ही रहने वाला है। Then we can find energy of electron। We can find energy of electron। आपको पता है हमने कितने न्यूमेरिकल्स किए थे बोहर में? 2.18 into 10⁻18 into z² upon n²। उसमें जो अपन में n² था ना, n², ये n वही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर हम n जानते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है वो भी हमें पता चल सकता है। n इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे।
और उसको KLMN से भी इंडिकेट किया जा सकता है। You have to remember this. और अरेंजमेंट है, इसका कोई रीजन नहीं होता। KLMN 1 2 3 4 मतलब ये हो गया। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताता हूं। If we want to find energy diagram, if we want to find energy diagram, किस तरीके से फाइंड करते देखिए। n square indicates number of orbitals। बहुत ही ध्यान से समझिएगा भैया, अगर हमें एनर्जी डायग्राम प्रिपेयर करना है तो हम n का स्क्वायर करेंगे, बट n का स्क्वायर करने के बाद मिलेगा क्या? ऑर्बिटल्स के कितने नंबर प्रेजेंट है वो हमें मिलेंगे। समझिए, आपने सभी ने देखा था n स्क्वायर ही हमने सभी टाइम किया है, तो n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंडिकेट करता है। चलिए अभी मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है, बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है, मैं 8 टाइम्स समझाने वाला हूं, 8 टाइम्स। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में परफेक्ट लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं ये समझाने में कैपेबल रहा हूं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा गेम। n स्क्वायर हम करेंगे, n स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए तो पहले हम लिखते हैं 1। 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 क्या मिला हमें? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए यहां पर देखिए, अगर पहले एनर्जी लेवल में मुझे कोई ऑर्बिटल दिखानी हो तो वो कौन सी ऑर्बिटल है कि जिसका सब टाइप सिर्फ एक ही है? तो ये S। इसका मतलब क्या होगा कि पहले एनर्जी लेवल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, वो है 1s, क्योंकि 1 का स्क्वायर करके मिलता है 1 और 1 सिर्फ एक में ही है। मैं 8 टाइम्स समझा रहा हूं, डोंट टेक अटेंशन। चलिए अभी हम ले रहे हैं 2। 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? यहाँ पर 4। चलिए तो इसमें से मैं कौन सी ऑर्बिटल सिलेक्ट करूंगा कि जिसका एडिशन 4 हो रहा है? तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, दोनों का एडिशन कीजिए, 1 + 3 4। तो सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s और 2p मिला हमें, 2s और 2p मिला। समझे कि नहीं समझे? इस दोनों का एडिशन कीजिए तो इसके स्क्वायर जितना मिलेगा, s का 1, p का 3, 1 + 3 4, या 2 का स्क्वायर कीजिए 4 मिलेगा। चलिए मैं तीसरी बार समझाता हूं। यहां पर हम ले रहे हैं 3 का स्क्वायर कीजिए, कितना मिला? 9। चलिए तो इसको भी ले लेते हैं, क्या हुआ? 1 + 3 4 + 5 9। तो तीसरे एनर्जी लेवल में 3s 3p और 3d मिल सकते हैं। 3s 3p और 3d मिल सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करके कितना मिलता है हमें? 9 मिलता है। इसीलिए ऐसा हो सकता है। ये हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। 4। चलिए 4 का स्क्वायर करना है, कितना मिलेगा? 4 का स्क्वायर 16। चलो तो 16 इसमें ले लेते हैं, तो f को एडिशन कर दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 मतलब हुआ 16। तो फोर्थ एनर्जी लेवल में 4s 4p 4d और 4f हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना बेस्ट एनर्जी डायग्राम यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है, देख सकते हैं आप। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा, लॉजिक है सिर्फ। इसका स्क्वायर किया मैंने आगे के फिगर का, 3 का स्क्वायर किया तो क्या मिला? 9 मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखना इसमें से 9 कैसे हो सकता है? 1 3 5 5 + 3 8 + 1 9 हो गया। स्क्वायर करते हैं हमें आंसर मिलता है, 4 का स्क्वायर करके 16 मिलता है, तो ये 16 यहां पर हो गए। 1 2 3 4। अभी देखिए टर्न आ रहा है, थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है। अभी मैं लिख रहा हूं यहां पर 5, बट मैं आपको बोलूंगा जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा।
कैसा मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। प्रूफ करता हूं, चलिए। अभी 4 के बाद हम लिखते हैं यहां पर 5। चलिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बट उतनी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए मेन जो ऑर्बिट्स होती है ना वो 4 ही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर 5, बट मैं स्क्वायर करूंगा 4 का, 4 3 2 1, इसको डबल करने वाला हूं। अरेंजमेंट है, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते इसमें। तो चलिए, मैं 4 का स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलता है 16। 4 का स्क्वायर करते हैं मिलता है 16। 16 लेने के लिए क्या हुआ यहां पर, एस पी डी और एफ। मैंने जो स्टेटमेंट बोला था ना वो प्रूफ हुआ। जो दिख रहा है वो है नहीं, दिख रहा है क्या 5, और वो है नहीं। जो है वो दिख नहीं रहा है क्या 4, और वो दिख नहीं रहा। मैंने स्क्वायर 4 का किया पर लिखा 5, क्योंकि मुझे इससे डिफर होना था। डिफर होने के लिए मैं यहाँ पर इस फिगर पर जा रहा हूं, तो लिखा यहाँ पर 5। ऐसे ही मैं करूंगा, देखिए अभी 6। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। दिख रहा है कितना 6, बट है 3। 4 3 2 1, तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 9। 9 अगर लेना है तो 1 + 3 4 + 5 9। 6s 6p 6d यहां पर दिया। उसके बाद 7, जो दिख रहा है वो है नहीं। 7 दिख रहा है पर नहीं है कितना 2, वो दिख नहीं रहा। 2 का स्क्वायर करे तो 4 मतलब 7s 7p। लास्ट वन जो दिख रहा है 8, वो है नहीं। जो है 1, वो दिख नहीं रहा। 1 का स्क्वायर करे यहां पर मिलेगा ओनली 1 मींस s। ये रिवर्स हो गया 1 2 3 4 4 3 2 1। इज इट क्लियर टू ऑल? ये प्रिपेयर हो गया है यहां पर एनर्जी डायग्राम। समझे आप सब? मैंने क्या किया, यहां तक मैंने अगले फिगर का स्क्वायर किया, जो भी आंसर आया उसमें ये मैंने ऐड कर दिए, तो मुझे एनर्जी लेवल में कौन सी ऑर्बिटल है वो पता चल गया। और यहां पर 4 3 2 1 का स्क्वायर किया है, पर लिखा है मैंने 5 6 7 8। इसको बोलते हैं के एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर। ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी ग्राफ, एनर्जी डायग्राम यहां से प्रिपेयर हो रहा है। ये कैसे आया एनर्जी डायग्राम, आप सब समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कौन सा है। समझ में आया तो आपको परफेक्ट लिखना। डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करना है। अच्छी तरीके से वीडियो रिवाइज भी आप कर सकते हैं। ये चांस है ऑनलाइन लेक्चर्स में वीडियो रिवीजन हम कर सकते हैं, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। मैंने बोला कि YouTube में पूरे इंडिया में किसी का भी लेक्चर देख लेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मुझे जितनी जानकारी है, मैंने जितने वीडियो स्टडी की है, उसमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं समझाया है कि एनर्जी डायग्राम किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। बट आप सब स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से इस मैटर को समझ गए हैं, अच्छी तरीके से समझे हैं, और बेहतरीन तरीके से आपको परफॉर्म करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो रिवाइज कीजिए, अच्छी तरीके से समझिए। फिर भी अगर इसमें कोई भी डाउट्स आप सबको आता है तो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेहतरीन तरीके का लेक्चर हमारा आज खत्म हो रहा है। कल हम इसी में आगे बढ़ के इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।